हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, irrespective whether the mammal is oviparous or viviparous, whatever is that, if it is mammal they must have the mammary gland. This is paired, इसका लोकेशन कहाँ होगा? At each lateral side of pectoral region of thorax. ये देखिए, this is a 1 2 3 4 5 6 7. These are the ribs. यहाँ पर पेक्टोरलिस, this is the pectoralis major muscle. This is the mammary gland. This mammary gland, it consists of 1 2 3 4, इस तरीके से कुल मिलाकर के 15 से 20 लोब्स होंगे. In between lobes, these are the adipose tissue. These are the adipose tissue. और इसके अंदर में there are several tubulo-alveolar glands. Tubulo-alveolar gland, सभी के अंदर में बहुत सारे ये जो लोब्स होंगे, each lobe contains several tubulo-alveolar glands. अब देखिए कि हर लोब से एक डक्ट निकलेगा, that is known as mammary duct. These are known as the mammary duct. So naturally mammary duct का नंबर कितना होगा? 15 to 20. क्योंकि इतना ही लोब है, हर लोब से एक डक्ट निकलेगा, that is known as the mammary duct. ये जो mammary duct होता है, ये आगे आकर के it dilates, इस तरीके से डायलेट करेगा. इस डायलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला. एंड फ्रॉम एम्पुला 15 to 20 इस तरीके से लैक्टिफेरस डक्ट आकर के खुलेगा. दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट. इसका भी नंबर वही 15 to 20 होगा. इट फॉर्म्स निपल, और निपल के चारों तरफ इस तरीके से a brown circle around nipple known as areola, highly sensitive. तो ये मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू
इन दोनों से मेनली बना हुआ होता है। इसके अंदर में 15 से 20 लोब होगा, मेमोरी लोब जिसको बोलते हैं। हर लोब के अंदर में कई सारे ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होंगे। ये जो ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होंगे, सभी एक लोब से जितने भी ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होंगे उन सभी का डक्ट आपस में मिलकर के एक मेमोरी डक्ट बनाएगा। दिस मेमोरी डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द each of the lobe. So the number of the memory duct is equal to the lobe in the mammary gland. It runs forward and dilate to form the ampulla. This is the ampulla where the milk is stored, and this from this ampulla the lactiferous duct arises that comes out forming a nipple. That is, तो nipple कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। nipple basically it is made of the ducts of the lactiferous duct. Around the nipple there is brown circle that is known as the areola. This is the highly sensitive. अब यहाँ पे एक बात जो हम लोग को समझना हो कि मेल के अंदर में और फीमेल के अंदर में क्या ऐसा डिफरेंस होता है जिसके कारण मेल के अंदर में ये फीमेल के अंदर में मिल्क का सिक्रीशन होता है, मेल के अंदर में नहीं होता है। इसको पहले देख लीजिए फिर उसको बताएंगे। जी सर, हो गया। हो गया ना? अब आइए। जी सर। देखिए यहां से क्वेश्चन भी है। ये देखिए कि hypothalamus both in male and female secretes PRL IRH, prolactin inhibit release hormone. This acts on adenohypophysis of pituitary. Stops secretion of prolactin. No milk secretion in individual. ये इसके बारे में पूछा गया है AIPMT में। व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर? दिस इज डोपामिन इन नेचर। डोपामिन। अच्छा, बात सिंपली इतनी सी नहीं है। ये जो प्रोलैक्टिन होता है, यहाँ से एक हार्मोन और सिक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GTH, GNTH। प्रोलैक्टिन एंड GNTH ये दोनों जो है एंटागोनिस्टिक होता है, यानी कि जब इसका सिक्रीशन होगा तो इसका सिक्रीशन बंद रहेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में इसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए ये मेल और फीमेल दोनों का ये कॉन्सेप्ट है। मेल के अंदर में थ्रू आउट द लाइफ देयर इज नो मिल्क सिक्रीशन, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज रूडिमेंटरी। इन द फीमेल before puberty memory gland is very small in size, or it is just like as that in the male. The reason is very simple. The developed memory gland is the secondary sexual character in the female, and that is developed by the estrogen. Since before the puberty there is no estrogen secretion at all, so memory gland was not developed. After attaining the puberty, estrogen secretion starts, and it is responsible for the development of the female secondary sexual character. So naturally memory gland start to develop. But we know that in female also
The mammary gland secretes secretes milk only during the last phase of the parturition, last phase of the pregnancy and post parturition about 6 months. लगभग जो है इतने दिनों तक, मतलब कि प्रेगनेंसी का जो लास्ट फेज होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर ये कहें हम लोग उसको कह सकते हैं, या एक्चुअली वो लास्ट ट्राइमेस्टर नहीं होता है, लगभग 1 महीने के आसपास में होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के 1 महीने के आसपास। उसके पहले से जो है मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और ये काम जब कब तक चलता रहता है, पार्चुरेशन के बाद लगभग 6 महीने तक। हालांकि ये कई लोगों के अंदर में उससे ज्यादा दिनों तक भी चलता है, लेकिन मोस्टली ये 6 महीने तक का ये काम होता है। इसमें कई तरीके का चीज आ जाता है, तो अब इसका जरा कॉन्सेप्ट देखिए। तो फीमेल में केवल उस पीरियड को छोड़ दिया जाए तो बाकी और समय में प्रेगनेंसी और समय में मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है। दूसरी बात कि मेमरी ग्लैंड तो डेवलप प्यूबरिटी अटेन करने के बाद हो जाता है, लेकिन मेमरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एट द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी होता है। उसका कारण क्या है? तो देखिए, जो प्लेसेंटा होता है, ये लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, it starts to secrete chorionic, rumen, prolactin, ये secrete CHPRL, और दूसरा एक्सेस ऑफ ओस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। अभी हमने बताया कि ओस्ट्रोजन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड। तो एक तो एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में प्यूबरिटी के बाद एक नॉर्मल कोर्स में सिक्रीट हो रहा था, प्रेगनेंसी के समय में एक्स्ट्रा ओस्ट्रोजन का सिक्रीशन होना शुरू हुआ, ओस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर मेमरी ग्लैंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ये जो HPRL है, ह्यूमन कोरियोनिक प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। तो ये जो है, ये देखिए मेमरी ग्लैंड है, ये मेमरी ग्लैंड है, इसके कारण इसका डेवलपमेंट हुआ, और ये जब इस पे कारण जब एक्ट किया तो मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। अभी हमने कहा कि जो प्रोलैक्टिन होता है, दिस इज एंटागोनिस्टिक टू GnTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका एक काम और होता है, टू ब्रेन स्टॉप्स GnTH सिक्रीशन, ब्रेन से GnTH का सिक्रीशन बंद कर देता है। अब क्या हुआ, जब ये बंद हो गया तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक था, जब ये बंद हो गया तो ये भी स्टार्ट हो गया। अब ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया एट द लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, व्हाट इज हैपनिंग? आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी द प्लेसेंटा इज डिस्ट्रॉयड। अब ये जो है कोरियोनिक प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, इसका सिक्रीशन बंद हो गया, लेकिन ब्रेन से पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन हो रहा था वो कंटिन्यू है। अब यहाँ पे ये मिल्क का सिक्रीशन ये करा देगा, ये जो है इसका मिल्क का सिक्रीशन करा देगा। बर्थ ऑफ बेबी हुआ तो वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेगा। अभी हमने कहा कि दिस इज द निपल एंड दिस इज द एरियोला। ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो एरियोला की से वो टच में जाएगा, तो यहाँ से एक सेंसेशन निकलेगा जो मैटरनल बिहेवियर का एक इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजेगा। वो बिहेवियर जा करके यहाँ से ये जाएगा, इसके सिक्रीशन को बंद कर दिया। अब इसके सिक्रीशन को बंद कर दिया, प्रोलैक्टिन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट रह गया, कंटिन्यू रह गया। ये सिक्रीशन कैसे स्टार्ट हुआ? जब प्लेसेंटा से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से गोनेडोट्रोपिन के सिक्रीशन को ये बंद किया, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, इन दोनों के प्रेजेंस में मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया।
जैसे ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेगा प्लेसेंटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट ब्रेन से जो प्रोलैक्टिन आ रहा था ये मिल्क का सेक्रेशन कराएगा, उसी समय ब्रेस्ट फीडिंग होगा। यहाँ से एक सेंसेशन ब्रेन को जाएगा, हाइपोथैलेमस से पीआरएल आईआरएच के सिक्रेशन को बंद कर देगा। ये बंद हो गया तो इसी के चलते जो है प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा था, अब ये कंटिन्यू रह गया, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कंटिन्यू रह गया। प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कंटिन्यू रह गया तो जीएनटीएच का सिक्रेशन बंद रहा। यही कारण है, कहा जाता है कि जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन बंद है। लगातार ये 6 महीने तक ये काम चलता रहेगा। धीरे धीरे यहाँ का सेंसेशन खत्म होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जब सेंसेशन उस लेवल पे पहुंच जाता है, इट इज नॉट एबल टू send the threshold stimulus to the hypothalamus to stop the PRL IRH secretion। जैसे ही ये बिहेवियर खत्म होगा, PRL IRH का सिक्रेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, GNTH का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? सर 1 मिनट सर, थोड़ा रुकिए सर। हाँ, सर एक बार फिर से सर, वो जो आफ्टर बेबी बर्थ। आफ्टर बेबी बर्थ, वो आफ्टर बेबी बर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बर्थ से पहले की बात समझिए। बर्थ से पहले था कि प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा एचपीआरएल सिक्रीट कर रहा था, इसका सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, ये ब्रेन में गया, जीएनटीएच के सिक्रीशन को बंद करा दिया, इसका सिक्रीशन बंद हो गया, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया जी। अब ये और ये दोनों जो है मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट करा दिया, एस्ट्रोजन जो है मेमोरी ग्लैंड को और भी डेवलप करा दिया। जैसे ही बर्थ ऑफ बेबी होगा प्लेसेंटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा था, इसलिए मिल्क का सिक्रेशन होगा। उसी समय में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुआ। एरियोला से एक मैटरनल बिहेवियर का सेंसेशन हाइपोथैलेमस से जाएगा। ख्याल होना चाहिए आपको, हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस इज एक्टिंग एज द न्यूरो एंडोक्राइन ब्रिज। ये बिहेवियर से भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। यहाँ से जो मैटरनल बिहेवियर था मदर का अपने बेबी के लिए, उसका सेंसेशन यहाँ से गया हाइपोथैलेमस से, ये यहाँ से जाकर के पीआरएल आईआरएच के सिक्रेशन को बंद करा दिया। ये बंद हो गया, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कंटिन्यू रह गया। प्रोलैक्टिन का कंटिन्यू रह गया सिक्रेशन, तो मिल्क का सिक्रेशन लगातार होता रहा। जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ का सेंसेशन कम होता चला जाएगा। ये सेंसेशन और मैटरनल बिहेवियर अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो कम होगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो धीरे धीरे सप्रेस होता चला जाएगा। एक समय आएगा कि ये लगभग सप्रेस हो जाएगा, पीआरएल आईआरएच का फिर सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बंद हो गया, मिल्क का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बंद हुआ, जीएनटीएच का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, ये जो मेल मैमरी ग्लैंड होते हैं सर, वो मिल्क क्यों नहीं सिक्रेट कर पाते हैं? बताए तो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ पीआरएल आईआरएच का सिक्रेशन होता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं होगा जी। तो ये मिल्क का सिक्रेशन नहीं कराएगा। दूसरी बात कि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा जी सर। और मेल का जो एरियोला होता है सर, वो जो मेल मैमरी ग्लैंड का एरियोला, वो भी क्या सेंसिटिव होता है? निश्चित तौर पे सर मेल में? हाँ जी सर वहां पे तो किसी मेमोरी, मतलब सॉरी मैमेलियन क्या बोल रहे थे सर आप, वो जो कैरेक्टर आता है ना मदर को, जिस वजह से वो हाइपोथैलेमस में जाता है सिग्नल। अरे भाई तो ठीक है, तो वो जो है मैटरनल बिहेवियर जो है वहां पे नहीं जा रहा है, बस यही बोल रहे हैं ना। जी सर, जी सर। तो मेमोरी ग्लैंड रूडिमेंट हुआ है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रूडिमेंट थोड़े ही हुए हैं, स्ट्रक्चर तो ऐसा बना ही है जी, सेंसेशन रहता है। जी सर। सर मेमोरी ग्लैंड भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है ना? डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। जी सर, जो हमारा मतलब सर, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के क्वेश्चन पूछूं सर, अगर हम बाइपेडल लोकोमोशन से पहले सर, जब मतलब उस टाइम पे भी क्या मेमोरी ग्लैंड हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर था? जी हाँ, बाइपेडल से उसका क्या लेना देना है? जितने भी मैमल्स हैं सभी के अंदर में मेमोरी ग्लैंड होता है। दिस मेमोरी ग्लैंड इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
आप बाइपेडल तो ह्यूमन बीइंग हुआ ना, दूसरे जो मैमल्स हैं आप देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, इन सबों के अंदर में होता है कि नहीं मेमोरी ग्लैंड? जी सर, जी सर, तो जी सर। उनके मेल के अंदर में क्या वो फंक्शनल होता है? नो सर। फिर जी सर। हो गया। जी सर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर देंगे, oogenesis भी कंप्लीट कर देंगे। कल एग्जैक्टली 7 बजे ये कर लेना। जी सर। चलिए, सर थैंक यू। सर वो हमारे टीचर कुछ बोल रहे थे कि जब से हमें बाइपेडल लोकोमोशन शुरू हुआ, तब से हमारा जो वजाइना का जो पोर्शन है फीमेल में वो नीचे की तरफ आया है। उससे पहले वजाइना का पोर्शन वहाँ नहीं था। तो बाइपेडल नहीं लोकोमोशन की देखिए, वजह से बात ऐसा है कि दीज आर द एडेप्टेशन ना, दीज आर द एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में जैसी जरूरत पड़ती गई वैसे वो चेंज होता चला गया। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके सर। हाँ जी, हाँ। थैंक यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि बाइपेडल लोकोमोशन, आप जो है आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक काऊ को या बफेलो को 2 पैरों पे आप खड़ा करिए, जी। और फिर जो है उनके बुलवा का, उनका जो वेस्टिबुली का लोकेशन देखिए, ह्यूमन के वेस्टिबुली का लोकेशन देखिए, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। दैट इज अच्छा। द फिजिकल रिक्वायरमेंट, एडेप्टेशन है ना। ओके सर, ओके, ओके। जी सर। चलिए चलिए थैंक यू चलिए, सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।